لکھو فیصلہ. جی علی چندر. مجھے پانی پلا دو. تم اپنی موت کی سزا سے خوش ہو؟ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں. کیا تم ہمارے خدا کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے خدا کو نہیں پہچانتا. اگر پہچانتے تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مبلغ اڈونیا ہے. ہاں، ان کے ساتھ ان کے آدمی ہیں. انہیں سزائے موت ہوئی ہے. ویدیاس جی کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے لیے حیران ہوں. ان کا سمجھنا واقعی مشکل ہے. چلو. اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی. میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں. ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے. ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا. بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینز. کل جو شہنشاہ آ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی. اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں.
ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینیز ٹھیک کہہ رہے. یہ موقع غنیمت. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں، بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے، شہنشاہ کے قتل تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں، بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے، شہنشاہ کے قتل کے انتقام میں وہ عوام کا خون بہائیں گے، اور دوسری طرف دیکھوں تو وہاں بھی قتل عام جاری ہے. بہت اچھی بات ہے، تو ان جرائم کا اصلی مجرم بھی سزا سے نہ بچے. سودینانوس، میں اسلحے کے ساتھ ان کا اور تمہارا منتظر رہوں گا. خداوندا، تو گواہ ہے کہ ہمارے اس اقدام میں فقط تیری خوشنودی ہے، نہ کہ ہمارے نفس کی. تو ہمیں قبول فرما اور اپنی راہ میں مجاہدت کی توفیق عطا کر. آپ کہتے ہو مسیح آسمان سے زمین پر نہیں آئے تھے؟ نہیں، عیسیٰ زمینی تھے، نہ خود خدا نہ خدا کے بیٹے بلکہ برگزیدہ نبی تھے. یہ یونانیوں کا افسانہ ہے کہ ایتھس خدا تھا جو آسمان سے زمین پر آیا، لوگوں کے لیے قتل ہوا اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمان واپس پھر چلا گیا. تو کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ ہاں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان عقائد کی تبلیغ عیسیٰ مسیح نے نہیں کی ہے. یعنی مسیح ہمارے گناہوں پر فدا نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ فدائی نہ تھے؟ نہیں، فدائی نہ تھے، ہادی تھے. خدا نہ تھے، پیغمبر تھے، خالق نہ تھے، مخلوق تھے. خدایا، آخر یہ انسان کب عاقل بنیں گے؟ دیکھو میرے بھائی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. سچائی معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو. افسوس، کاش تم سے نہ ملا ہوتا. نہیں معلوم کہ حقیقت سے روبرو ہو جاؤں یا اپنی جاہلیت پہ باقی رہوں. ارے کچھ تو بتاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اور اتنی رات گئے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ خدایا قبول کر، لحظہ دیدار قریب.
सब रुक जाओ। बाबा ईस को नासरी के झूठे दीन को कबूल करने और खुदायाने रूम की हैनत के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। बाबा ईस, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। अदनान, आओ आगे। नासिरी दीन की पैरवी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। सलामीस, तुम्हें चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। रहम करो, मुझ पे रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया, तुमको मसीही मजहब की तबलीग के इल्जाम पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इन्हें। जाओ। यकीन जानो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे ये क्या करते हो? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ये नजराना जा कबूल कर। खुदाया, पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है? तेरे करम ने साकी हमारे इश्क को हमेशा के लिए जावेदा कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है, तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला। अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना जा कबूल हो जाए। बारिलाह, आंखें पथरा गई हैं उनके इंतजार में, इंसानियत घुट रही है इस अंधेरे में। बारिलाह, फारान पे अहमद का नूर चमका दे, अंधेरा छट जाए, उजाला हो जाए, अहमद के नूर का उजाला। आमीन। आली जनाब, मैं एंथोनी। हाँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ये दूध लीजिए हुजूर, चरवाहे के पास दूध के सिवा कोई तोहफा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी दुआ है, इसको कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैंने आपकी मुनाजात सुनी, बहुत मजा आया। आप तो औलिया में से मालूम होते हैं। ठीक कहता हूँ, बिल्कुल है। अब जैसा चाहे सोचो। किस खुलूस से आप राज़ो न्याज़ कर रहे थे? आली जनाब, मैंने सुना कि आप अपनी मुनाजात में वो अहमद का जिक्र कर रहे थे।
آپ نے کہا اس کے دیدار کی آرزو ہے. یہ احمد کون ہے؟ تم نے کتاب مقدس پڑھی ہے؟ نہ، میں بالکل ان پڑھ ہوں. تو سنو، میں تمہیں کتاب مقدس سے کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں. تثنیہ میں لکھا ہے، یہ وہ بشارت ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سنایا. انہوں نے کہا، یہوہ کوہ سینا پر جلوہ فروز ہوا، کوہ سعید پر تابندہ اور کوہ فاران پر ذوفشاں ہوگا. کوہ فاراں پہ تجلی کرنے والا یہ نور اور نہیں، وہی مسیحا ہوگا جس کی بشارت ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے دی ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ فاران کہاں ہے؟ فاران وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو رہائش دی ہے. اور احمد آخری نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں اور وہیں ظہور کریں گے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم پر خدا کا کرم ہو اور ہم انہیں دیکھیں؟ بے شک وہ ایک دن ضرور ظہور کریں گے. خدا کا وعدہ ہے، لیکن کب خدا بہتر جانتا ہے. یعنی اگر احمد آئے تو اپنے جد ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں گے؟ بے شک بتوں کو توڑنے میں کتنا مزہ آئے گا. ہاں ایسا ہی ہے، مگر ٹوٹے ہوئے بت بعض اوقات قابل مرمت ہوتے ہیں. ایسے بتوں کو توڑنا چاہیے جن کی مرمت ممکن نہ ہو. روکو اس کو، روکو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے. ٹھہرو، ابھی دیکھتا ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ اڈونیا مبلغ اور اس کے ساتھی مسیح افراد ہیں. اچھا، ان میں دنیا کون ہے؟ وہ ہے وہ. اچھا وہ اچھی خوراک تلاش کی ہے. چلو آؤ ان کی پٹائی کرتے ہیں. رکو، کیا کرو؟ پتھر نہ مارو. رکو رکو، رک جاؤ رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ. وہ خود مرنے والے ہیں، تمہیں پتھر مار کے کیا ملے گا؟ چلو جاؤ، اپنا راستہ لو. چلو. اب جبکہ وہ مر ہی رہا ہے اور چند پتھر مار لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ہمارے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. افسوس کہ حضرت موسیٰ کی ہدایتوں اور محنتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں. انہیں تو چاہیے کہ
दुश्मन समझें तो अपने नफ्स को, इन्हें तो चाहिए कि मलामत न करें सिवाय अपने आप को। चंद दिन की दुनिया की छिछोरी लालच में तुमने अपने आप से दुश्मनी मोल ली है और तुम्हें खुद नहीं पता। लो एक सिक्का, हमें पत्थर मारने दो। एक सिक्का, इससे क्या होने वाला है? हमें पत्थर मारने दो, हमें पत्थर मारने दो। मजे चखो, ईसा की पैरवी करते हो। मजे चखो, मजे चखो, लो लो। आए हो तुम पर। एक ही सिक्का दिया है। मारो और पत्थर मारते। मारो, खूब मारो, पत्थर मारो, और पत्थर, इसको खूब मारो पत्थर। मारो और पत्थर। हमारे लोगों को गुमराह करते हो, तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। और बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर मारो। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। इनको खूब पत्थर मारो, बड़े पत्थर मारो, बड़ा पत्थर, इनका यही अंजाम होना चाहिए। मारो इनको और पत्थर। हाँ? शर्म करो अपनी जलालत पर रियाकारो। तो और जोर से मारो, इनको छोड़ो नहीं। मारो और जोर से। फेंको, फेंको उसको और मारो, और मारो इसको। या ईसा इब्न मरियम, वाह हो तुम रियाकारों पर कि अपने मतलब की शरीयत चलाते हो और शरीयत की रूह को तुमने बदल डाला और उसके असास और बुनियादों को तुमने तर्क कर डाला। रहमत व अदालत व मुरव्वत, इंसाफ व इंसानियत नाम की कोई चीज तुम में नहीं है। कितना मुनाफिकाना तुम्हारा चाल चलन है, किसी गंदे नाले की तरह, ऊपर से हरे भरे, अंदर से निहायत बदबूदार। ऐ अंबिया और सालिहीन को सता सता के कत्ल करने वालों, उनके कबूर को मिस्मार करने वालों, शर्म करो जो उनकी पैरवी का मुनाफिकाना दम भरते हो। उनकी सीरत तो अपना नहीं सकते, जो अपनाते हैं उन्हीं से दुश्मनी करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब। क्या कर रहे हो तुम लोग? बददिल। जनाब मैक्सिमिलियन, क्यों अपने आप को खतरे में डाला? मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, हंसी खुशी मुझे विदा कीजिए। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपको निजात दिलाऊंगा। अभी कोई चीज ढूंढ के लाता हूँ। आप कतई मेरे लिए परेशान ना हो, लहज़े दीदार नजदीक है। मैं आपसे पहले मंजिल पर पहुंच गया। आपको अजीम काम के लिए भी इंतजार करना होगा। यहाँ से चले जाइए, मुहाफिजीन पहुंचते ही होंगे। आली जनाब, यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। कैसे मैं आपको तन्हा छोड़ दूं? जो अपने माबूद के साथ होता ना कैसे हुआ। आपसे इल्तिजा है, चले जाइए, चले जाइए। खुदा हाफिज दुनिया, खुदा हाफिज।
बताओ क्या खबर है जूलियस? आली जनाब, कल रात मुबल्लिग अदोनिया को सूली पर चढ़ा दिया गया। शाबाश जूलियस, इस्तकबाल की तैयारियां हो गई? शहर शहंशाह के इस्तकबाल के लिए तैयार है। अच्छा, बहुत अच्छा। आज फिलाडेल्फिया शहंशाह एड्रीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। याद दहानी कराना, हम तुम सबको इनाम अता करेंगे, हत्ता उनको भी जिन्होंने कुछ नहीं किया और इन चंद रोज के दौरान जो शहर के बाहर तफरी के लिए गए हुए थे। तुम्हारा मकसद मैक्सिमिलियन तो नहीं जूलियस? बिल्कुल सही आली जनाब। ठहरो, जूलियस की खबर लेता हूँ। मुझे उसका शमशीर चलाना अच्छा लगता है। मार डालूंगा मैं तुझे। आली जनाब, दरबानों ने खबर दी है कि मैक्सिमिलियन 4 दिन पहले शहर से बाहर गए हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं। तुम फिक्र न करो, तुम्हारे शुभात का जवाब मैं तिलमी खां से सुन चुका हूं। उठ जाओ। हाँ, जनाब मैक्सिमिलियन तशरीफ ले आए। जनाब जूलियस जानना चाहते हैं कि आप कहाँ थे और क्या किया। अलबत्ता बेहतर है कि पहले आप उनको जवाब दें। जूलियस को तो हमेशा हमारी फिक्र रहती है। अलबत्ता मैं भी सूरत हाल से आगाह करने हाजिर खिदमत हुआ हूं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिन रास्तों से शहंशाह आजम की सवारी गुजरेगी वहां मसीहियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और मैं शहंशाह पर कातिलाना हमले को बैद नहीं समझता। लिहाजा जरूरी था जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। इसी बिना पर हालात का जायजा लेने और उन पर काबू पाने के लिए उन इलाकों के दौरों पर निकल गया। खुशकिस्मती से जैसा कि मौसूला इत्तलात ने बताया, हालात खतरनाक नहीं है और किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जाहिरन जूलियस को भी अपना जवाब मिल गया होगा। ठीक है। एरकिमीद क्यों परेशान कर रहे हो चचा को? तुम्हारे बाबा आ गए। सलाम बाबा। सलाम मेरे बेटे। आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिन अच्छे बेटे थे ना? आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा जो आने में इतनी देर लगा दी। खुदा का शुक्र। आली जनाब,
मसलहत नहीं थी कि इस हालत में आप शहर छोड़ते। यकीनन जासूसों ने आपकी गैर हाजिरी की खबर दी होगी। गैलेस, क्या खुदा के सिवा भी किसी से डरना चाहिए? हाँ? क्यों, मेरी गैर हाजिरी में कुछ हुआ तो नहीं? एडोनिया के बारे में मुझे इल्म है। तो आपको मालूम था? हाँ, जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसकी सलीब के पास था। क्या मालूम कि उसका अंजाम हमारा भी इंतजार न कर रहा हो। वो मुकद्दर जो खुदावंद आलम हमारे लिए लिखे बेशक हमें मंजूर है। अगर खुदावंद आलम ने जल्द अपने पास बुला लिया तो क्या हम लोगों को गमगीन होना चाहिए? आली जनाब, सच पूछिए तो सिर्फ बानो हिलन ही नहीं डर रही हैं, बल्कि मुझे भी कल की फिक्र लगी हुई है। आपकी इजाजत से। शहंशाह की आमद-ओ-रफ्त मुसीबत से खाली नहीं है। बिल्कुल तशवीश न करो, शहंशाह के दिन अब खत्म होने वाले हैं। खुदा की इनायत से कुछ फैसले मैंने किए। आखिर 4 दिन के बाद आली जनाब आ ही गए। मुझे मालूम है, लेकिन बहुत इंतजार करवा के। आप दिल में खौर यमानी साए हैं। चलो बेटे। आली जनाब मैक्सिमिलियन पर सलाम हो। सलाम हो हमारे अजीज दोस्तों पर। अजीब बात है, आखिर कैसे जनाब अली को अपने शहर की याद आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था, इस मुसीबत का हल तलाश किए बगैर नहीं लौटूंगा। तो जाहिरन आपको कोई हल मिल गया होगा। खुदा के फजलो करम से हाँ। क्या आली जनाब को इस बात की इत्तला है? दुनिया की? हाँ, इन्हें मालूम है। तो फिर उसकी निजात के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुनिया के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस जुल्म के असल बानी को सजा देनी चाहिए। आपके मुझ से दिलचस्प बातें सुन रहा हूं। लेकिन आप तो शहंशाह एड्रीन को कत्ल करने के मुखालिफ थे। शहंशाह को तो कत्ल ही करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं। हम आपके फैसले को सुनने के लिए बेकरार हैं। जल्दी ना कीजिए, वक्त आने पर पहले आप ही को बताऊंगा। खुद हमें जिंदान जाना चाहिए। शायद हम लोग दुनिया के लिए कुछ कर सकें। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं।
मारो। मार्सेलिस, मुझ पर रहम करो, क्यों मारते हो? आली जनाबान पर सलाम। किस लिए सजा दी जा रही है? इकरार के लिए आली जनाब, ये मसीही हैं, इनके लिए कोड़ों की सजा हुई है। काफी है, रिहा कर दो इन्हें। लेकिन आली जनाब, इनकी सजा बाकी है। नहीं सुना जनाब ने क्या कहा? काफी है, बस करो। इन्हें खोल दो और कैद खाने में ले जाओ। मार्सेलिस। जी आली जनाब। मुबल्लिग अडोनिया कहाँ है? कल आधी रात के वक्त उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। आधी रात में क्यों? उसके हम मजहब लोगों के मुमकिना हंगामे की रोकथाम के लिए। तुम जा सकते हो। जी आली जनाब। दुनिया की बातें भी हजरत ज़करिया जैसी थी, जो अभी तक गूंज रही हैं। हमें नहीं मालूम होना चाहिए कि ये बुत कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। हमें नहीं पता चलना चाहिए कि ये मुजस्समे क्यों टूट गए और अपना दिफा भी नहीं किया। जो अपना दिफा नहीं कर सकते, हमारा दिफा क्या करेंगे अली जनाब? क्या यही खुदा है? ये बेजान मुजस्समे तो खुदा नहीं। इन मुजस्समों को आज रात ज़करिया के खून का बदला चुकाना होगा, और वो भी संगीन बदला। बड़ा दिलचस्प जानवर। नहीं नहीं, इसे छेड़ना मत। आओ भाई, बंदर का तमाशा देखो। राजा खा। मैं दूंगा अपने हाथ। इसे छेड़ना मत। आप